In our class, we'll discuss something about module verbs. Because from the previous some classes we are in verb, so there are a variety of things over there in the verb. Today we're gonna try to know about module verbs. Module verbs, it's a kind of verbs. Modal verbs are a type of auxiliary verb which expresses the mood of another verb. They are used to express ideas such as something certain, probable or possible, or talking about the ability to ask information, making requests and offers, and so on. What are modal verbs? Modal verbs are a type of auxiliary verb. It's a type of auxiliary verb. As in the previous class, we discussed in details about the auxiliary verbs. Auxiliary verbs are called helping verbs too, because they help to the main verb in showing the tense or the time of the work. So, like auxiliary verbs, we also have modal verbs, and they are just like auxiliary verbs. So, they are a type of auxiliary verbs. As like those were also auxiliary verbs, but modal verbs are also a type of, a kind of auxiliary verbs. Modal verbs are a type of auxiliary verb. So what this type of auxiliary verb does in a sentence along with the verb, dative or verbs and mood of verbs. In those mood of verbs, here in a sentence, if we have a mood, in a mood of sentence, there is a verb, and the verb still about the mood. You know that the mood, by the mood we mean that the way of talking, the way of saying in a sentence. The way of saying about what in a sentence, that is the mood, and the verb which show this way of talking, this way of work or action is called a mood of verb. So, modal verbs, we use them to express ideas. We use them to express ideas by how that to express the mood of another verb. For expressing the mood of another verb, we use modal verbs to express the ideas, to express, by idea, we mean that something is certain in a sentence, in a word, in an action. So, to express the ideas such as something is certain, such as probable or possible. Something is probable, something is possible about the action of the verb, or talking about ability, or sometimes in a sentence we may talk about the ability of a noun. At that time we use a verb, and by modal verb we show the mood of that verb. So by the mood of that verb showing through modal verbs, we do talk about that ability. We do talk about, and we asking about the permissions. We are making requests and offers and so on, so many other things too. Through modal verbs we can show them in sentence. Pyare fellows, modal verbs ये एक किस्म की auxiliary verb है. जिस तरह पिछली वीडियोस में हम auxiliary verbs के बारे में जान चुके थे और हमने तफसीली बहस की थी auxiliary verb के बारे में. Auxiliary verb को helping verbs भी कहते हैं, जो main verb का मदद करते हैं ज़माना या टाइम या टेंस शो करने में. ठीक है ना, उस वीडियो में हम इस पे बहस कर चुके थे. तो मॉडल वर्ड्स भी एक किस्म की ऑक्सिलरी वर्ब है. अगर ये एक किस्म की ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम इसके जरिए क्या करते हैं इन सेंटेंस? इसके जरिए हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरे वर्ब की मूड को. एज मूड्स ऑफ वर्ब्स हमारी एक अदर वीडियो थी, अलग सी वीडियो थी मूड्स ऑफ वर्ब पे. तो वर्ब का जो मूड है, यानी बात के करने का जो अंदाज है, काम के करने का जो तरीका है,
काम के करने का जो प्रोसेस है, काम के करने के बारे में बताने का जो अंदाज है, उसी को हम मूड तो कहते हैं, लेकिन उस मूड के बारे में मजीद बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। सो मॉडल वर्ब्स आर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब का एक किस्म है which express the mood of another verb, जो दूसरे वर्ब के मूड के बारे में बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, इजहार करते हैं, इजहार ख्याल करते हैं। Such as for example, मसलन something is certain, कोई ऐसी चीज जो यकीनी हो, उसकी यकीनी होने के बारे में बात बताने के लिए हम वर्ब के साथ मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, और ये मॉडल वर्ब एज ऑक्सिलरी फॉर्म यूज होते हैं। जिस तरह एक वर्ब के टाइम को शो करने के लिए, वर्ब के अंदाज को शो करने के लिए, और वर्ब के होने के वाक़ये को शो करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इसी तरह बतौर ऑक्सिलरी वर्ब हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, ताकि ये हमें काम के करने के अंदाज यानी मूड के बारे में और बता सके। सो दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज। हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं आइडियाज के इजहार के लिए, ख्यालात के इजहार के लिए, और हम इन्हें यूज करते हैं एक काम, एक एक्शन या एक वर्ब के होने में प्रोबेबिलिटी का मतलब है एहतिमाल, उस एक काम के होने का कितना एहतिमाल है। फर्ज किया मैं आपको मिसाल दूं कि फर्ज किया मेहमानों के आने का एहतिमाल है। Here is the probability. Here is the probability of the arrival of the guest. So यहाँ एहतिमाल है। एहतिमाल मतलब बात यकीनी नहीं है, हो सकता है कि आ न जाए मेहमान, लेकिन काफी हद तक मुमकिनात ये है कि आ जाए। सो इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ऐसे काम जो हम एक जुमले में उनके होने के बारे में, उनके होने के प्रोबेबिलिटी का इजहार करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। एहतिमाल के इजहार के लिए हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल के इजहार के लिए हम एक मेन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब यूज करते हैं बतौर ऑक्सिलरी, ताकि वो हमें बता सके। हम अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए एक वर्ब के साथ मॉडल वर्ब यूज करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के लिए मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, और हम किसी काम के होने के यकीनी होने के बारे में बताने के लिए मॉडल वर्ब्स का इजहार करते हैं। हम किसी काम की पॉसिबिलिटी यानी मुमकिनात यानी इम्कानात यानी होने में कितना इम्कान है, इस चीज की इजहार के लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं along with main verb. So like is that we do use modal verbs for talking about the ability, किसी नाउन या प्रोनाउन के काबिलियत के, उसकी एबिलिटी, उसकी सलाहियत के बारे में, या किसी काम के होने की सलाहियत के बारे में बताने के लिए वर्ब के साथ हम मॉडल वर्ब्स का भी यूज करते हैं। अच्छा, we also use modal verbs for asking permissions in a sentence. हम परमिशन के लिए, पूछने के लिए, परमिशन को पूछने के लिए यानी इजाजत लेने के लिए हम भी मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। और हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं किसी काम के करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। और इसी तरह हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं इनविटेशंस के लिए, किसी को दावत देने के लिए, किसी काम में शमूलियत के लिए दावत देने के लिए, या ऑफर्स के लिए, ऑफर्स पेशकश के लिए, ऑफर पेश करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। प्यारे और अजीज तलबा, मॉडल वर्ब्स को अगर हम यूज करेंगे इन्हीं मकासद के लिए एक सेंटेंस में कि हम एक्सप्रेस करें आइडियाज को, जैसे कि समथिंग इज सर्टेन, किसी चीज की यकीनी
यकीनी होने के लिए, probability यानी एहतिमाल के लिए, possibility यानी मुमकिनात के लिए, talking about ability किसी की सलाहियत के बारे में बात करने के लिए, asking permission इजाजत लेने के लिए, and making request किसी को दरखास्त करने के लिए, एंड ऑफर्स और पेशकश करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए, और इस तरह और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके लिए हम मॉडल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम मॉडल वर्ड्स यूज करेंगे तो हमारा आर्टिकल खूबसूरत हो जाएगा, हमारा इसे बेहतरीन हो जाएगा। और अगर हम बातों में इसे यूज करते हैं at the time when we use it in our interaction, conversation with the people, at that time there would be a very value in our talking, in our conversation. So we must use the modal verbs. अब बात ये हुई कि modal verbs है क्या? What are modal verbs? Modal verbs आपको यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया, इस चार्ट में modal verbs भी दिखाए हैं और साथ में उनका इस्तेमाल भी दिखाया गया है, मिसालों से वजाहत भी की गई है, और इस हर एक मिसाल के सामने ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि इस सेंटेंस में या इस मिसाल में कौन सा मॉडल वर्ड्स का कौन सा खासियत इस्तेमाल किया गया है, इनमें से टू एक्सप्रेस आइडियाज, कौन से आइडिया का इजहार, किस ख्याल का इजहार इस जुमले में किया गया है। सो अजीज तलबा, हमारे साथ मॉडल वर्ड्स है कैन, कैन नॉट और कैंट, may not, should not। एक चीज याद रखिएगा, कैन और जब हम कैन नॉट लिखते हैं तो इसको कैन स्पेस नॉट नहीं लिखना चाहिए। अमूमन हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको लिखने में गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देखिए इधर कैन नॉट, इधर इसमें से ये थोड़ा सा स्पेस पैदा किया गया, कैन नॉट नहीं, और बोलते भी इस तरह है कि कैन नॉट, ये रॉन्ग है। इसको हमने कैसे लिखना है? बगैर स्पेस के, कैन नॉट, ठीक है। और इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि कैन और ये कॉमा के साथ और टी यानी कि कैंट। तो इसको हम कैन नॉट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैन नॉट, और इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि कैंट। सो हियर कैन और कैंट या कैन नॉट। अच्छा, दूसरा ये कैन का जो है, देखिए अब कैन पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा, अगर हम कैन सवाल के लिए फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन यूज करते हैं तो इसकी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैन से। देखिए इधर प्रोनाउंसिएशन किससे करेंगे? कैन से, कैन से। फॉर एग्जांपल, कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? दरअसल ये कैन है ना, कैन। तो हम बोलने में जब सवाल करते हैं, if we have a question with somebody else, so we should not ask with the pronunciation that can you speak English? No, it's wrong. Can से करना है। देखिए can और किन में फर्क है बोलने में। So लिखना तो ऐसा है CAN can, ठीक है ना। अगर सवाल है तो किन से प्रोनाउंस करेंगे, और अगर सलाहियत के बारे में बताना है, एबिलिटी के बारे में बताना है इस सवाल के जवाब में, तो फिर हम कैन से फिर प्रोनाउंसिएशन करेंगे। देखिए सवाल करते हैं तो कैन से, और अगर हम जवाब देते हैं या सलाहियत या काबिलियत के बारे में या सलाहियत के बारे में बताने के लिए, यानी फॉर शोइंग द एबिलिटी शो करने के लिए अगर हम फिर कहेंगे तो फिर हम कैन का प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैन से, KAN। सो देखिए इधर CEKEN और KAN, तो KEN से हम प्रोनाउंस करेंगे कैन को सवाल करने के लिए, और CAN यानी कैन को जवाब या सलाहियत के बारे में बताने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए यूज करते हैं, तो कैन यूज करेंगे। दोबारा सुनिए, सवाल के लिए कैन और एबिलिटी शो करने के लिए कैन। फॉर एग्जांपल, कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो जवाब यस आई कैन। समझ गए ना? कैन से क्वेश्चन किया, कैन से जवाब दिया। चीज एक है, स्पेल एक है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से करना होगा। और दूसरा,
ये जब कैन नॉट, तो कैन नॉट को साथ में लिखना है, इसमें से स्पेस नहीं लगाना है, हमेशा कैन नॉट साथ में लिखेंगे। ओके, सो मॉडल यानी मॉडल वर्ड्स, इस यहाँ पर ये मैंने मॉडल लिखा, मॉडल का मतलब क्या है, यानी मॉडल वर्ड्स। वर्ड मॉडल वर्ड्स ये है कैन, कैन नॉट, may not, should not या shouldn't। ओके, ये हमारे साथ मौजूद वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6, एक नॉट के साथ, एक बगैर नॉट के, विदाउट नॉट। अब इसको मैंने कुछ एग्जांपल्स में यूज किया ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी एबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी और कौन सी सलाहियत वगैरह वगैरह या परमिशन वगैरह इसमें इस्तेमाल की गई। अब देखिएगा इधर, ये इसका एग्जांपल है और उसके ये फंक्शन है। इस यहाँ पर मॉडल वर्ब ने कौन सा फंक्शन यूज किया, वो फंक्शन इधर इस वाले, ये वाला जो है हमारे साथ, इसमें से हमने फंक्शन, उसके फंक्शन लिख दिए। यहाँ पर एक मिसाल है और यहाँ पर मॉडल वर्ब है कैन। सो कैन, देखिए यूज ऑफ कैन, they can fix the device, यहाँ पर क्या है ना, so कैसे बोलेंगे, can, they can fix the device, क्या है, ability है ना, ability का इजहार किया गया। so देखिए इधर ability, इस जुमले में क्या है, मॉडल वर्ब ने हमें क्या बताया, कौन सा फंक्शन बता दिया, they can fix the device। यहाँ पर ability शो की गई क्योंकि मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं as like an auxiliary word which expresses the mood of another word। they are used to express ideas such as something is certain, probable, possible, are talking about the ability, talking about the ability। so इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या शो किया गया, इस सेंटेंस में यहाँ पर ability शो की गई और ability के शो के लिए हमने एक मॉडल वर्ब यूज किया और वो मॉडल वर्ब can है जो कि इसी जुमले में यहाँ पे मौजूद है। they can fix the device, तो यहाँ पर ability है, प्रोनाउंसिएशन भी can से करेंगे। ओके, they can't fix the device, वही एक ही चीज है, एक ही जुमला है। एक में एबिलिटी को शो किया गया कि ये कर सकते हैं, ये उनमें सलाहियत है, और यहाँ पर उनमें सलाहियत ये नहीं है, नहीं कर सकते, तो एबिलिटी और यहाँ पे इनएबिलिटी, इनएबिलिटी गैर सलाहियत, उनमें सलाहियत का फुकदान है, ये वो नहीं कर सकते। सो न कर सकने के लिए यहाँ पर कैन नॉट बतौर मॉडल वर्ब हमने यूज कर दिया। इसी तरह अजीज तलबा देखिए सवाल किया गया है इधर, और मैंने आपको बताया ना सवाल किससे करेंगे, किन से, प्रोनाउंसिएशन किन। सो देखिए कैन आई फ्लाई विद यू, कैन आई फ्लाई विद यू, यहाँ पर परमिशन है, बाहर एक क्वेश्चन तो है। सो कैन आई फ्लाई विद यू, आस्किंग परमिशन, ये इसमें इस कैन से क्या मतलब, इजाजत लेना है, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, यानी अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके साथ खेलूं। सो मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, इजाजत है, क्या है, आस्किंग परमिशन, आस्किंग परमिशन, परमिशन के लिए। और ऊपर वाले इस जुमले में देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, दरअसल रिक्वेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किया गया, कैन आई हैव कप टी प्लीज, कैन आई हैव कप ऑफ टी प्लीज, एक कप चाय, एक कप चाय का मिलेगा, क्या मुझे एक कप चाय देंगे, दे सकते हैं, क्या मुझे एक कप चाय दे सकते हैं, यानी मुझे एक कप, दरअसल इसका मतलब क्या है, मुझे एक कप चाय चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं सादे अल्फाज में कि मुझे एक कप चाय दे दीजिए। सो कैन आई हैव कप ऑफ टी प्लीज, प्लीज भी साथ लगाया गया एंड में, तो रिक्वेस्ट किया गया, दरखास्त की गई, मांगा गया। ओके, कैन आई प्ले विद यू, इस पे तो मैंने बात कर दी, आज की परमिशन है, ऊपर रिक्वेस्ट है, ही कुड कम इन द लास्ट वीक, he could come in the last week। यहाँ पर दो चीजें हैं, सजेशन और एडवाइस। एक तो ये कि हम बात कर रहे हैं, हमारा कोई साथी बाहर है, वो बाहर से हम चाहते हैं कि वो आ जाए, सो ही कुड कम इन द लास्ट वीक, लास्ट वीक में यार उसको चाहिए ना कि आ जाए, आ सकता है, तो ये एडवाइस भी हो सकती है, एक नसीहत भी हो सकता है, तजवीज भी हो सकता है, दोनों है, या और चाहिए हमारा तजवीज है उसके लिए कि वो आ जाए, और एडवाइस भी है, हम चाहते हैं कि वो आ जाए, उसको एक नसीहत है, यार आ जाओ बस करो उधर ये वो ये वगैरह। ओके, हाउ कुड कम, ओके ये तो हो गया। कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर देखिए ऑफर भी है, इनविटेशन भी है, आपने अपनी हेल्प के लिए अपने हेल्प को ऑफर किया गया, पेशकश की गई, क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, क्या मैं अपनी सलाहियतों को आपकी मदद के लिए यूज कर सकता हूँ। सो कैन आई हेल्प यू, ऑफर एंड इनविटेशन इस सेंटेंस में है। आई कुड हैव मीट
I could have met Rashid because he is in Karachi. I could have met Rashid because he is in Karachi. I could have met Rashid because he is in Karachi. यहाँ पर डाउट है, एक शक का इजहार है, वो कराची में है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिलूं, लेकिन हो सकता है कि न मिल सकूं। बात मशकूक है, चाहता हूँ गुड चाहत के लिए, तो चाहता हूँ कि मिलूं लेकिन शायद न मिल सकूं, तो लिहाजा ये कैन और कैन नॉट और ये हमारे साथ मॉडल वर्ड्स और ये उनके फंक्शन। अब देखिए मैं और मैं ना, मैंने दो जुमलों में, इसके बात लंबी होती जा रही है, वीडियो लंबी होती जा रही है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहरहाल इसके बगैर हो नहीं सकता। सो मैं एंड मैं नॉट, मैं आई गो टू द मार्केट, यहाँ पर आस्किंग परमिशन के लिए किया गया ना, मैं आई गो टू द मार्केट, और मैं नॉट I may be able to help her in her activities। अब देखिए इसमें साथ I may, सॉरी इधर देखिए, I may not be able to help her in her activities। उसके काम में, उसके लिए, उसके साथ मदद करने के लिए शायद मैं न कर सकूं, यानी शायद मुझ में ये अहलियत ना हो, शायद मुझ में ये काबिलियत ना हो कि मैं उसके कामों में उसके साथ क्या करूं, मदद कर सकूं। तो यहाँ पर इनएबिलिटी शो की गई, यहाँ पर इनएबिलिटी शो की गई, इनएबिलिटी का इजहार किया गया कि हो सकता है मुझ में ये सलाहियत ना हो, और डाउट भी है, इनएबिलिटी भी है और साथ में डाउट भी है, इसमें डाउट और इनएबिलिटी दोनों है, शक भी है, हो सकता है कि मदद कर सकूं, हो सकता है कि ना कर सकूं, सो मैं से, और I may not be able to help her in her activities, और ये मैं से, मैं I go to the market, क्वेश्चन asking permission है, should and shouldn't, it's getting late, हाँ लेट हो रही है यार, टाइम लेट हो गया, देर हो गई, they should reach soon, उनको जल्द पहुंचना चाहिए, वो कहीं जा रहे हैं और हम बस उनके बारे में फिक्रमंद हैं, हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं क्योंकि रात देर हो रही है, रात को देर हो रही है, वो अकेले जा रहे हैं और साथ पास में सवारी भी नहीं है, पैदल जा रहे हैं, तो हमें फिक्र है यार, उनको पहुंचना चाहिए, उधर पहुंचना चाहिए, हाँ लेट हो रही है, हाँ देर हो रही है। सो इस शुड से हमने किसका इजहार किया, प्रोबेबिलिटी का इजहार कर दिया, पहुंचे, ओके। Should I help you with these tools? कुछ टूल्स हैं, क्या मैं इन टूल्स से, इन औजार से क्या मैं आपका मदद करूं? सो करना चाहिए मुझे। Should I help you with these tools? Offer and invitation दोनों है, invitation भी है, offer भी है, okay? Shouldn't, we should go by road, अच्छा ये तो suggestion है, advice है, okay? I should be working but I'm too exhausted, और अगर इसमें से हम not लगा दे, I should not go by road, we should not go by road, भी suggestion है और advice है, और अगर हम we should go by road कहें तो फिर भी advice है और suggestion है। अच्छा, I should be working, मुझे काम करना चाहिए था, होना चाहिए था कि मैं अभी काम करता, but I'm too exhausted, बहुत ज्यादा exhaust हो गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो इसलिए मैं अभी काम में मशगूल नहीं हूँ, चाहिए था कि मैं काम में मशगूल होता, लेकिन चूंकि exhausted, तो यहाँ पर क्या है, obligation है, एक obligation लगा दी गई कि exhausted हो तो इसलिए काम में नहीं, वरना काम में होना चाहिए था। इसी तरह ये सारे हमारे साथ जो है ये मॉडल वर्ड्स है। बोर्ड को आपके लिए खाली छोड़ता हूं, फिर वापस आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जनाब, उम्मीद है बहुत ज्यादा मैं होपफुल हूँ कि हमारी जो बिगिनर्स हैं या जितने हमारे इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्ट लेने वाले हैं उन्हें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वीडियो उनको अच्छी लगी हुई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि हमारे सारे साथियों को इससे फ़ायदा पहुंचे और उनके साथ हमारा काम हम शेयर कर सके। साथ में सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। आज के लिए बस इतना कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।